छोटा मीन्स केवल 7-8 मिनट का है, लेकिन उसका एक एक सेकंड कुछ कह रहा है। वी नीड योर अटेंशन, थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें एक फ़ायदा ये भी है, यहीं से बैठे बैठे ब्रज का भी दर्शन सहज में हो जाता है। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम व्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता नाम पद्मप्रियम। Man Mandir Barsana have been greatly successful in halting the destruction of these aspects of Braj. Our inspiration is Sri Ramesh Babaji Maharaj of Barsana, who has been leading the seva for the past 6 decades. पर्यावरण के जितने बड़े रक्षक भगवान कृष्ण हुए हैं, उतना आज तक कोई नहीं हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बालकपन में मिट्टी खाई कि भूमि शोधन किया। उसके बाद भगवान ने कालियानाग को नाथा और सारी यमुना को शुद्ध कर दिया। और उसके बाद भगवान की दृष्टि गई अग्नि तत्व, इसके लिए उन्होंने दावानल पान 2 बार किया। भगवान ने तृणावर्त को मार करके वायु प्रदूषण किया। व्योमासुर जो आकाश का रूप था, उसका संहार करके आकाश तत्व को शुद्ध किया। By serving Braj or performing devotional service to God, we have planted several thousand trees. You can plant some too. Form a group, adopt trees, look for people who can get the job done. We manage a huge natural cow shelter. You can adopt a few cows. You can support several other cow shelters. We have saved Braj culture through Harinam Kirtans across thousands of villages in India. You can speed up the spread of Harinam Kirtan by adopting many more village Kirtan groups.
The polluted river Yamunaji needs all of us. One of the biggest tragedies of Braj Vrindavan today is Shri Yamuna River. It is one of the dirtiest rivers on earth. A little known reason for this sad state is lack of enough natural water flow in it. After only a few kilometers of its birth, almost 97% of its waters are taken away. What remains on the riverbed dries up within a few kilometers. The river is finished much before it enters Braj Vrindavan. What flows in Vrindavan is simply and only domestic and industrial sewage from Shahadra drain of Delhi and other smaller drains. These facts of Yamunaji River are easily available on various websites of the Government of India. If true devotees of Sri Krishna speak in the same voice, it shall be loud enough to bring the government into action. The same Sri Yamunaji River, which has since ages brought millions of devotees nearer to Krishna, is itself jailed away from Braj Vrindavan. The government can free her if it wants. They will if you want. You can inform, inspire, and dedicate people to be proactive on its remedies. Water step wells or gunds are interwoven into the cultural fabric of Braj. We have restored several gunds. You can adopt a gund or be a part of its restoration. Service done to Braj Vrindavan brings great blessings and prosperities. We wish to invite you all to our memorable Braj Chorasi Kos Yatra undertaken every year. Approximately 15,000 devotees from all over the world travel across Braj for 40 days and relish transcendental locations and timeless culture. This totally free of cost yatra offers 24-hour live Harinam Kirtan and an opportunity to embrace Krishna's dearest landscape, Braj. Look closely at this painting of Krishna Leela. He can easily lift Govardhan Hill on his little finger, and yet he calls for help. He was simply giving opportunities to his devotees to serve him. He is doing the same now again. Let's serve Braj and be blessed. ये वेबसाइट है जिस पे सेम प्रेजेंटेशन एज इट इज़ आप देख सकते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है जो डिटेल में जाना चाहे उसके लिए। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया यमुना जी के विषय में, वो एक मैप से, जैसा इस वीडियो में भी समझाया गया, हम थोड़ा सा आपको यमुनोत्री से यमुना जी निकलती है। ये यमुनोत्री का दृश्य है। यमुना जी जहाँ से प्रकट होती हैं, हिमालय। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद मात्र 60 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 59 पॉइंट कुछ किलोमीटर चलने के बाद यहाँ एक हथनी कुंड बैराज है। जब ये एंटर करती है हरियाणा में, हथनी कुंड एक डैम है। इस डैम पे 97% से ज़्यादा ये रिवर रोक ली गई है पिछले कई सालों से, किसी को पता नहीं है। और जो 3% छोड़ा जाता है पानी, वो कुछ दूर मुश्किल से 25-30 किलोमीटर चलने के बाद ही सूख जाता है, क्योंकि रेत है। रेत पानी को सुखाती है, उसका नेचर है। उसके बाद पूरा रिवर, ये रिवर बेड 145 किलोमीटर, इसमें पानीपत, सोनीपत सब आता है। किसी का कभी उधर जाना हो तो देखना, वहाँ सारा का सारा रिवर बेड पे सैंड माफिया, जो रेत का व्यापार करता है इलीगली और
वो इसमें गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट रहता है। इसके बाद जब ये रिवर दिल्ली एंटर करती है, रिवर बेड, रिवर तो पीछे ही छूट गई, तो दिल्ली में एंटर करते ही वजीराबाद बैराज है। वजीराबाद डैम ये दिल्ली वालों की तरफ से कंट्रोल, दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से कंट्रोल है। ये यहाँ से जो हरियाणा ने सारा पानी लिया था उसमें से कुछ सीवेज, क्योंकि पानी यूज़ करने के बाद मलमूत्र का रूप हो गया, कुछ फैक्ट्रीज़ के पास जो उनका गंदा पानी निकलता है फैक्ट्रियों का केमिकल वगैरह, वो सब कॉकटेल मिला के यहाँ पर छोड़ता है दिल्ली से ठीक पहले हरियाणा। उसको दिल्ली इस डैम से रोककर और अपनी ओर सारा ले लेता है, और दिल्ली में 17 छोटे बड़े 17 STPs सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स के माध्यम से दिल्ली को सारा ट्रीटेड पानी पिलाता है। और उसके बाद फिर दिल्ली भी यूज़ करने के बाद अपना सारा जो भी गंदा पानी है वो सारा ये छोटे बड़े 17 नालों से उसमें वापस डंप करता है रिवर बेड पे। मीन्स रिवर बेड अब यूज़ हो रहा है एक तरह से नाले की तरह। कुछ दूर चलने के बाद 22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है दिल्ली का। जब दिल्ली ख़त्म होने लगता है वहाँ पर ओखला बैराज है, ओखला में ओखला डैम। वहाँ से दिल्ली सारा ये जो कुछ भी इवन सीवेज भी है, पानी तो है ही नहीं, सीवेज को भी डाइवर्ट कर देता है आगरा कैनाल की ओर इरिगेशन पर्पस के लिए। उसका परिणाम ये है आज इस रास्ते में जितना भी खेती है, जितने भी फ्रूट फल सब्जियां उगती हैं, वो सब की सब जहरीली, उसमें आर्सेनिक का पाया जाने लगा है, एक पॉइजन। अब ये रिवर बेड यहाँ से चला यमुनोत्री से, और चलता चलता दिल्ली से होता हुआ ये हरियाणा दिल्ली होता हुआ ये पहुँचता है वृंदावन, मथुरा वृंदावन गोकुल। यहाँ जो दिखता है, क्योंकि यहाँ भी तो पानी दिख रहा है, ये सब क्या है? सब लोग सोचते हैं कि ये गंदी स्थिति में है यमुना जी का पानी, पॉल्यूशन है जो यमुना जी के पानी मिक्स होकर के उसको ऐसा रूप बना के दे रहा है। और लेकिन इसलिए श्रद्धा से अभी भी लोग जाते ही हैं, और आचमन लेके बीमार भी होते ही हैं तो भी आचमन लेते हैं। ये आ रहा है शाहदरा, ओखला बैराज के बाद बिल्कुल सूखा है। ये साथ साथ गूगल मैप से भी आप जाके गूगल में भी देख सकते हैं, गूगल इमेजरी से, ये सब सूखे बेड क्या स्थिति है यमुना जी की। यहाँ जो दिख रहा है वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में, ये शाहदरा ड्रेन, ये दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के दूसरी तरफ से आ रही है शाहदरा ड्रेन। ये देखिए डैम है और ये पीछे से एक ड्रेन आ रही है, हाईली पॉल्यूटेड ड्रेन। 97 करोड़ कॉलीफॉर्म है इसमें, 5000 कॉलीफॉर्म से ज़्यादा एक नदी झेल भी नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा प्योर ड्रेन है, प्योर सीवेज है, इसलिए सारा का सारा। और उसके बाद 2-3 और छोटी बड़ी हाईली पॉल्यूटेड ड्रेन्स हैं, ये सब मिक्स होके यहाँ पर मिल रहा है लोगों को। उनको पता ही नहीं है कि उनको सीवेज मिल रहा है। यहाँ 5000 से ज़्यादा लोग, 5000 से ज़्यादा मंदिर रोज इस जल को लेते हैं, ये सोच के कि यमुना जी का जल है। एवरीडे उनका नियम है, और अपने ठाकुरों को स्नान कराते हैं, अपने भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको स्नान कराते हैं। ये अगर पता चल जाए तो धीरे धीरे, इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया, लोगों को पता चले। हमने सरकार के पास जाके भी इस बात को, अच्छा ये तो समस्या हो गई, इसका सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन हम नहीं कह रहे हैं, इस सॉल्यूशन सरकार ने दिया है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने। हमारा सारा काम तो इन्होंने ही कर दिया, लेकिन ये सब दबाया गया था, बहुत दिनों से दबाया हुआ था, 1999 से। 1999 में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड की थी हरियाणा गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को। उनकी एक हाई पावर्ड कमेटी और CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनका रिकमेंडेशन है, ये इनका दिया गया सुझाव है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को निर्देश दिया, आदेश नहीं। रिवर हरियाणा 97% रोक रहा है, क्यों? पहला उनका क्वेश्चन ये था।
उन्होंने पूरी